Good morning to all of you. Today, first of all, we will discuss about the subject. In the sequence of the subject, I will speak in Hindi, and after half time I will speak in English. First in English and then second half in Hindi, because most of the students are from the Hindi background and some students are from the English background. Main important question is that after this lecture, according to the feedback of the student, I will speak either in English or in Hindi or the mixed mode. It will depend upon the feedback of the students. Now, here we start the subject. First of all, welcome to all of the students. My name is Prashant Bagmar, lecturer, Government Polytechnic College, Jodhpur. I teach you the subject which is common in electronics and fiber optics branch. The name is Electronic Component and Shop Practice, EL/EF 201. Here, the first chapter is Register, in which we studied the classification of register, color coding, tolerance, various parameters related with register, construction of the register, fixed type, semi-variable type, variable type, and the special type of resistors like LDR, VDR, thermistor, sensistors, fusible resistors, and the next point is failure of the resistors, in which we learn how to test the resistor with the help of multimeter. The second chapter is capacitor. In the capacitor, again the classification of capacitors, construction detail, specifications, applications of various types of capacitors, same the fixed type, in which mica, paper, ceramic, plastic, and electrolytic capacitors. Here the variable capacitor, gang capacitor, and trimmers. Failure of capacitors, identification, marking of capacitors. It means how can we identify the different type of capacitors, what is the marking on it, and same the color coding of capacitor is also studied in this chapter. The next chapter is inductor and coils, classification of inductors, construction detail, specifications, application of fixed and variable inductors, air core, iron core, and the ferrite core inductors. The term related to inductors in the above subject, in the above chapters, also there is a terms related to resistor, terms related to capacitor, and here the terms related to coil. These are very important topic which is repeatedly used
or asked in the examinations. Skin effect, very important topic. Dielectric losses, distributed capacitance, and quality factor. Soldering and desoldering techniques. Here, how to solder, what equipment, and which part is used, like connections, flux, alloy, different soldering materials, and problems. Different soldering methods: hand soldering, wave soldering, dip soldering, ultrasonic soldering, and desoldering techniques. Now, I repeat in Hindi. सभी छात्रों का स्वागत है। इसमें हम एक क्लास के अंदर सबसे पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे, अंग्रेजी में पढ़ेंगे, उसके बाद में उसका हिंदी रूपांतरण करेंगे। और जिस तरह के स्टूडेंट के विद्यार्थियों के वापस मेरे को जवाब आएंगे, वह ये तय करेगा कि मैं इंग्लिश में पढ़ाऊँ, हिंदी में पढ़ाऊँ या मिश्रित भाषा में इसको पढ़ाया जाए। ये सभी आपके फीडबैक के ऊपर निर्भर करेगा। हम आज जो विषय पढ़ने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स तथा फाइबर ब्रांच में कॉमन सब्जेक्ट है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड शॉप प्रैक्टिस, EL/EF 201। इसमें हम अलग अलग तरह के बेसिक जो मूल कंपोनेंट है जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला जो अध्याय है वो है प्रतिरोध। इसमें हम सबसे पहले प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद में प्रतिरोध की कलर कोडिंग, अलग अलग पैरामीटर्स और उसकी बनावट को पढ़ेंगे। कोई भी प्रतिरोध कैसे बनता है, उसके लक्षण क्या है, उसके प्रयोग कहाँ किए जा सकते हैं, ये सभी हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। अलग अलग प्रकार के प्रतिरोध जैसे कि फिक्स स्थिर प्रतिरोध, वेरिएबल सेमी वेरिएबल प्रतिरोध और वेरिएबल प्रतिरोध। इसमें भी अलग अलग तरह के प्रतिरोध होंगे। कार्बन कंपोजिशन, धातु चादर, कार्बन चादर और वायर वाउंड यानी कुंडली की तरह। उसके बाद में कुछ विशेष प्रकार के प्रतिरोध जैसे कि LDR, VDR, थर्मिस्टर, सेंसिस्टर और फ्यूजेबल रजिस्टर। और रजिस्टर कैसे ख़राब होता है, रजिस्टर की जांच कैसे की जाती है, ये सभी मल्टीमीटर की सहायता से करना है। और इसकी विधि जो है हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय है कैपेसिटर यानी संधारित्र। संधारित्र में भी वही, संधारित्र कितने तरह के होते हैं, संधारित्र कैसे बनता है, उसके गुणधर्म क्या है, ये कहाँ प्रयोग आते हैं और ये कितने तरह के होते हैं, माइका, कागज, सिरामिक,
प्लास्टिक, इलेक्ट्रोलाइटिक एवं वेरिएबल संधारित्र के अंदर समूह संधारित्र और ट्रिमर आदि। फिर कैपेसिटर संधारित्र कैसे खराब होते हैं, कैसे पहचानते हैं, उन संधारित्र को कैसे हम जांचते हैं, ये सभी विधि जो है हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। अगला आता है कुंडली एवं इंडक्टर्स। इसमें भी वही, कितने प्रकार के कुंडली कितनी प्रकार की होती है, कैसे बनती है, क्या क्या ध्यान रखना होता है, क्या क्या उसके लक्षण गुणधर्म होंगे एवं उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के अंदर, और टाइप प्रकार क्या क्या होंगे, और उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि हम इंडक्टर में काम में लेते हैं, जैसे कि स्किन इफेक्ट, त्वचई प्रभाव, डाइलेक्ट्रिक हानि, डिस्ट्रीब्यूटेड संधारित्र और उसकी क्वालिटी फैक्टर। सोल्डरिंग एंड डी सोल्डरिंग। सोल्डरिंग का मतलब होता है किसी भी कंपोनेंट को सर्किट में लगाना, जोड़ना, उसके बीच में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बनाना। और डी सोल्डरिंग का मतलब है कि कोई भी कंपोनेंट को परिपथ से हटाना। सोल्डरिंग के लिए हम कौन कौन सी चीज़ें काम में लेते हैं, उसके अंदर आता है सोल्डरिंग आयरन, फ्लक्स, सोल्डर मटेरियल, और डी सोल्डरिंग के लिए काम आता है डी सोल्डरिंग पंप और कुछ अन्य। यहाँ पर सोल्डरिंग कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है और उनके क्या क्या लाभ हैं, ये सब हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। अतः इसमें हम सोल्डरिंग, डी सोल्डरिंग, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, यहाँ कहने का मतलब यह है कि इन सब में ये सभी जो है वो पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं। तो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे सेकंड पार्ट of this syllabus. Thank you very much to the all of the student.